Okay, so let's move on to the next one. Now same unit 5 का second question है. Now we want to find out the inverse of this matrix by using row transformation. It's a 3 cross 3 matrix. Okay, question will be asked for 3 to 4 marks. So chalo solution, what we do, so we consider the given matrix as A. So consider A is equal to 2 1 3 in the first row, 1 0 1 in the second row, and 2 1 1 in the third row. Okay, let us find out the value of this determinant. Okay, so look, therefore determinant of A. So this matrix entries will be written in form of a determinant. For your reference, I am doing this working. Next example onwards, आप मेरे को determinant का value बताओगे. Okay, therefore determinant of A is equal to return, leave the first row first column, this into this minus this into this, so 0 minus 1 आएगा -1. ठीक है, फिर -1 लिखना है. ठीक है, leave the first row second column, this into this minus this into this, so 1 minus 2 ये आएगा -1. ठीक है, plus 3 times of, leave the first row third column, this into this minus this into this, तो ये आएगा 1. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इज व्हाट, -2 है ये. ठीक है, -2 एंड दिस इज +3, so -2 + 3 is +1. 1 + 1, value of the determinant is 2. Check, has everyone got determinant of A equal to 2? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, yeah, now as we observe, determinant of A का value आया, but it is not equal to 0. तो देखो next step पे, since determinant of A is not equal to 0, since determinant of A, since का symbol है ये, therefore का उल्टा, since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. मतलब A inverse exist हो रहा है. ठीक है, now what we have to do, we have to use row transformation. हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेके. ओके, so write down on the next line, we know that, ऐसा लिखो, we know that, write down what we know, A into A inverse is equal to I. This is what we know. Okay, so therefore matrix A, so write down matrix A. Let us move on quickly. 2 1 3, okay, into A inverse is equal to identity matrix. Okay, now we have to play our games of ones and zeros. इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. See, that's why we have learned the procedure of converting to identity matrix, you know, first. Okay, now what we have to do, students. Okay, अब जहां पे 2 है वहां पे हमें 1 चाहिए. Okay, at the place of 2 we want 1. So can anyone tell me what transformation should be done first of all? R1 changes to R1 minus R2. R2. Okay, ठीक है. Now see, there are 2 options. Okay, R1 changes when we do R1 minus R2. Can anyone tell me else? एक तो हो गया R1 minus R2. हाँ, R1 minus R2 ये बराबर है. दूसरा ऑप्शन कोई और ऊपर 1 लाने का? R1 changes interchange to R2. Very good, absolutely. R1 interchange with R2. हम दोनों में से कोई एक भी फॉलो कर सकते हैं. Either of them can be followed. But you know what will happen? अगर मैंने इससे स्टार्ट किया और आपने इससे स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं ना, मतलब मैं नहीं देख सकता कि आप क्या कर रहे हो और आप नहीं देख सकते मैं क्या कर रहा हूँ. हम दोनों का आंसर जो है वो टैली होगा 100%. अगर कुछ गलती नहीं किया
तो 100% टैली होगा, बट उसके बाद के जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं ना, वो हम एक दूसरे के नहीं देख सकते. नाउ सिंस वी आर डूइंग इट टुगेदर, लेट अस गो विद इंटरचेंज. अभी इंटरचेंज का क्या बेनिफिट होगा, ये 0 देखो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा. so that will be better if we do that, you know. so let us go with R1 interchange with R2. okay, दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है और ये सही है, दोनों सही है. जो इजी लगेगा वो अपने को करने का. ओके, so let us do with R1 interchange with R2. both transformations are absolutely correct, but let us follow interchange वाला. okay, right now since we are doing it together, तो लिख लो R1 इंटरचेंज विथ R2. तीन ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. या तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी रो या कॉलम को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, एंड वी कैन डू स्केलर मल्टीपल एंड एड इट टू सम ऑफ द रो और कॉलम. तीन ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. तो चलो लेट अस इंटरचेंज R1 एंड R2 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, दोनों साइड पे चेंज करना है हमें. ठीक है, तो लिखो R1 इंटरचेंज विथ R2, तो ये हो जाएगा 1 0 1. दिस विल बी 2 1 3. फर्स्ट एंड द सेकेंड रो को हमने इंटरचेंज कर लिया. थर्ड रो सेम रहेगा, इनटू A इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. तो ये 0 1 0 ये ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 नीचे आ जाएगा, 0 0 1 is going to remain the same. To maintain equality, दोनों साइड पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज डू रिमेंबर. इंटरचेंज हो गया हमारा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग टू बी डन. नाउ ये 1 हो गया, अब ये दोनों में से किसी एक को 0 करना है. either of them we make 0. now let us say, suppose let us make this entry 0. okay, now can anyone tell me how do I make this 0? R2 minus 2 of R3. sorry, any one of you? R2 minus 2 of R1. हाँ बराबर है. अभी देखो इसमें भी दो ऑप्शन है. R2 minus 2 times of R1. R2 minus 2 times of R1, या दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं, R2 minus R3 भी कर सकते हैं. R2 minus R3 भी कर सकते हैं, बट R2 minus R3 करने में क्या प्रॉब्लम है कि ये 2 minus 2 0, ये 1 minus 1 ये भी 0 हो जाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम. कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते. तो लेट अस फॉलो R2 minus twice of R1. लेट अस डू दैट प्रोसीजर. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, R2 changes when we do R2 minus twice of R1. R2 minus twice of R1, जहां पे 1 होता है ना, उसके साथ आप ऑपरेट करने की कोशिश करो टू मेक 0. तो चलो लेट अस डू दिस. R2 changes to row number 1 as well as row number 3 is going to remain the same. R1 R3 सेम रहेगा. ओनली R2 changes, R2 minus twice of R1. आपको चाहिए साइड में रफ वर्क करके देखो R2 minus 2 R1 के लिए. ओके, तो R2 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 3 minus 2 also 1. तो ये 0 डबल 1 हो गया. नाउ चलो टेल मी द RHS, टेल मी द राइट हैंड साइड. R2 1 minus 2 and 1. हाँ, check carefully. 1 minus 2 and 0. हाँ. 0. Yeah, please rectify. 1 minus 2 and 0. ठीक है, डायरेक्ट करने को नहीं आता है तो साइड में आप रफ वर्क करके देख सकते हो, और करो. आई वुड सजेस्ट करो रफ वर्क फॉर योर रेफरेंस. जरा सा भी गलती हो गया ना,
तो जो ए इनवर्स मिलने वाला है ना सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर सपोज ये एंट्री रॉन्ग हो गया, किसी का भी, आपका रॉन्ग हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया, सपोज ये एंट्री रॉन्ग हो गया, तो वो लास्ट तक रॉन्ग 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 ही रहेगा टिल द एंड, और मालूम नहीं पड़ेगा। अगर सामने आंसर है तो मालूम पड़ेगा कि अरे यार ए इनवर्स गलत आया, एग्जाम में तो वो भी मालूम नहीं पड़ेगा, बट यू कैन वेरीफाई। चलो, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। नाउ वी हैव टू मेक दिस एंट्री 0। टेल मी द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको 0 करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बताओ मेरे को, समवन। R3 minus 2 R1. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो लिखो R3 changes when we do R3 minus twice of R1, next transformation। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट डाउन। तो चलो लेट अस फॉलो दिस। R3 minus twice of R1 करते हैं। ओके, therefore next step R3 changes, row number 3 changes, तो row number 1 and row number 2 will remain same, row number 3 change होने वाला है। चलो प्लीज मेक द चेंजेस, आई एम गिविंग यू टाइम टू डू दैट एंड डू इट केयरफुली। स्टार्टिंग में थोड़ा रॉन्ग हुआ चलेगा, ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स। व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग ऑब्वियसली थोड़ा तो रॉन्ग होता ही है ना। चलो नाउ R3 changes when we do R3 minus twice of R1। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, 2 minus 2, ये आएगा 0, ये 1 है और ये 0 है तो ये 1 ही रहेगा। 1 minus 2 ये हो जाएगा -1। 0 1 -1 इज रो नंबर 3 नाउ। अभी वो साइड पे रो नंबर 3, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0 ही रहेगा। ये 0 है और ये 1 है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम -2। ये 1 है पर ये 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। हाँ, ये तो एक वर्किंग करके बता देता हूँ। देखो ये वाला, ये -2 कैसे आया वो वर्किंग करके बता देता हूँ। यू नो इट, बट देन स्टिल R3 का वैल्यू इज 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का इनपुट जाएगा 1, तो 0 -2 होता है -2। दैट इज हाउ आई गेट दिस एज -2। ओके, तो नाउ वी हैव मेड दिस 1, ये दोनों 0 हो गए, ये बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, ये बाय डिफॉल्ट 0 है ऑलरेडी। अब इसको 0 करना है, तो हाउ डू आई मेक दिस एंट्री 0? जहाँ पे 1 है इसको 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन? R3 minus R2। एब्सोल्युटली, तो R3 changes when we do R3 minus R2। ठीक है ना, फॉलो द ऑर्डर ऑफ गेटिंग वंस एंड जीरोस। when we are doing row transformation, column wise ones and zeros लाने, very simple। okay, R1 is going to remain same, R2 is also going to remain same, R3 changes into A inverse is equal to R3 minus R2, 0 0, ये एंट्री भी 0, 1 -1, ये एंट्री भी 0, और ये एंट्री आएगा -2, -1 -1 -2। now changes over here, R3 minus R2, -1, this minus this 0, this minus this 1। ओके, तो ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? दिस एंट्री शुड बी मेड 1, इसको हमें 1 करना है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग, कैन एनीवन टेल मी इसको कैसे 1 करेंगे हम? minus half by R3, minus half of R3। वेरी गुड, परफेक्ट। तो लिखो R3 changes when we do minus half of R3।
नाउ नो अदर ट्रांसफॉर्मेशन विल वर्क. R1 plus 2 times of R2 नहीं कर सकते, R3 plus 2 times of R2 नहीं कर सकते, R3 plus 2 times of R1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको जीरो करने के लिए और कुछ भी किया तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे. दे विल चेंज, विच इज नॉट अलाउड. एक बार जो जीरो हमने कर दिया वो वापस नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है. ओके, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको -2 से डिवाइड करें हम. देयर इज नो अनदर ऑप्शन. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी गेट? फर्स्ट रो रिमेनिंग सेम, सेकेंड रो रिमेनिंग सेम, थर्ड रो चेंज होने वाला है, तो वो आप करो चेंजेस. into A inverse is equal to the right side. Now we divide throughout by -2, तो ये है 0 0, ये है 1. इधर भी -2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट नाउ 1/2. ये एंट्री आएगा 1/2, ये एंट्री 0 ही रहेगा, एंड दिस एंट्री विल बी -1/2. फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गया, ध्यान से करना है मेरे को. This entry is half, this entry is 0, and this entry is now -half. -2 से हमने डिवाइड किया, पूरे रो को -2 से हमने डिवाइड किया. तो ये एंट्री 1 हो गई. ओके, तो आई डब दिस ऑफ नाउ. चलो अभी ये दोनों को हमें जीरो करना है 1 by 1. We have to make them 0, but 1 by 1. ओके, अभी फर्क नहीं पड़ता है किसको पहले जीरो कर रहे हैं, इसको जीरो करो या इसको जीरो करो, दैट डजंट मैटर. अच्छा, लेट अस गो इन द ऑर्डर. लेट अस मेक दिस 0. So tell me the transformation to make this 0. R2 minus R3. Very good. तो लिखो R2 changes when we do R2 minus R3. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ध्यान से करना है दोनों, स्पेशली ऑन द राइट हैंड साइड. R2 minus R3. R2 minus R1 हम नहीं कर सकते, you know why. अच्छा, अभी R2 minus R3 करेंगे तो रो नंबर 1 is going to remain same. Row number 1 remaining same. Row number 3 also remaining same. Row number 2 चेंज हो जाएगा. ऐसा करने का, ब्लैंक छोड़ देने का, ताकि अपने को मालूम पड़े कि ये भरना है अपने को. फिल इन द ब्लैंक्स. इट्स दैट काइंड. अच्छा, R1 excuse me, sorry, R1 and R3 सेम रहेगा, हाफ, 0 and -half. R2 is going to change on both the sides. So left hand side वाला तो simplification simple है. This is 0, 1 and 0. Now simplify the right hand side very properly and tell me the entries in row number 2 on the right hand side. ध्यान से करना. R2 minus R3, this minus this, this minus this, this minus this. ध्यान से करो. टेल मी R2 के एंट्रीज आप बताओगे मेरे को. -1/2 to -1/2. नो, डू इट वंस अगेन. आकाश, ध्यान से करो. R2 minus R3, 1 minus half. फर्स्ट वाला एंट्री आपने गलत बताया. Half -2 and -half. हाँ, आपने लास्ट वाला गलत बताया. देखो लिखता हूं मैं. फर्स्ट एंट्री इज हाफ, सेकेंड एंट्री इज -2 एंड थर्ड एंट्री इज +half. प्लीज चेक. हाफ, -2 एंड हाफ. ठीक है ना, ये बहुत ध्यान से करना है. कभी फ्रैक्शन इन्वॉल्व है ना, बहुत ध्यान से करना. R2 minus R3 कैसे, चलो मैं बता देता हूँ. फ्रैक्शन में इसलिए हाफ माइनस हाफ इज हाफ. देखो उधर हाफ आया. फिर देखो -2 -0, तो ये -2 ही रहेगा. एंड लास्ट में दिस इज 0 माइनस ऑफ -half, दैट इज नथिंग बट +half. तो हाफ, -half एंड हाफ इज रो नंबर 2. तो व्हेनेवर इट्स अ फ्रैक्शन इन्वॉल्व, किसी भी हो, ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ध्यान से करने होते हैं. ठीक है, चलो वन लास्ट वन नाउ, वन लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन.
कि हमें अभी इस एंट्री को 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए हमें फाइनली फॉलो करना पड़ेगा R1 changes when we do R1 minus R3. चलो follow this now carefully. R1 minus R3 करो। Okay, if any doubt please you can ask. ऐसे सिंपल है, इसमें ऐसे डिफिकल्ट है नहीं। इट्स अ गेम ऑफ वंस एंड जीरोस, दैट्स इट। ठीक है, तो देयरफॉर रो नंबर 1 चेंजेस, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A inverse is equal to on the other side। ठीक है, ये एंट्री है हाफ, ये एंट्री है -2, ये एंट्री है हाफ। ठीक है, दिस एंट्री इज half, 0 and negative half. Now carefully do it and tell me the entries in the first row. R1 के तो entries आप minus बताओ। half, -1 half. No, once again see, minus half बराबर बोला, half minus half, minus half Minus 1 1. and half. हाँ minus half, 1 and half। R1 minus R3, 0 minus half is minus half, 1 minus 0 is 1, 0 minus of minus half is plus half। ठीक है ना, देखो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो देखो देयरफॉर I into A inverse is equal to I into A inverse is equal to, now write down the right hand side, ये है minus half, 1 half in the first row, in the second row it is half, -2 and half, and in the third row it is half, 0 minus half, and therefore I into A inverse itself is nothing but A inverse, and A inverse is this is A inverse, minus half, 1 straight up। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो स्टेप मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिस इज अवर फाइनल आंसर। नो मोर फर्दर सिंप्लीफिकेशन टू बी डन। नो डाउट हम इसमें से हाफ कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक हाफ कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ देम एंड देन आल्सो वी कैन राइट डाउन द आंसर। वो भी करते हैं, पहले आप इतना लिख लो। अब हमें नहीं पता कि आंसर कैसा दिया है। इफ वी स्टॉप ओवर हियर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। If you want, we can take half common also from it, no problem absolutely। बट हम ऐसा रखेंगे चलेगा, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। देयर इज नो कंपल्सन कि हाफ कॉमन लेना ही है, नो नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन लीव इट एज इट इज ओवर हियर एज योर A inverse। Okay, please check your steps, then we'll move on to the next question। Okay, please note down the next question students, which is on your screen। This is the given matrix। फर्स्ट कॉलम में it is 7 -18 and -10, सेकेंड कॉलम में -6 16 and 9, and थर्ड कॉलम में it is -2 5 and 3। कॉलम में क्यों ऐसा कॉलम वाइज क्यों लिख रहा हूँ या कॉलम वाइज क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज नाउ इट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू बी यूज्ड। ओके, नाउ इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, this will carry 4 marks in exam। It's a 4 marker। So the solution, what we do, let's consider the given matrix as A as usual। लिखो consider, ठीक है, the matrix as A। तो लिखो A is equal to, write down this matrix, 7 -18 -10 first column, -6 16 9 second column, -2 5 3 third column। इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स A। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो लिखो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, and start finding the value of the determinant। डिटर्मिनेंट का वैल्यू
find करो and let me know what is that value. I give you a time of 1 minute. Start doing. Zero. No, not correct. Zero नहीं आएगा. Do it once again. 1 1. Yes, correct. 1 आएगा. Value of the determinant is 1. अब ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है. जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है ना, दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो तो कुछ भी नॉन जीरो नंबर आएगा चलेगा. नो, इट शुड बी करेक्ट. आई टेल यू व्हाई लेटर ऑन. जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो करेक्ट आना बहुत जरूरी है. तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज 1. आई होप एवरीवन गॉट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एज 1. ठीक है ना. दिस इज ऑलरेडी नोन. वी हैव डन इट इन 11th स्टैंडर्ड. डिटर्मिनेंट फाइंड करना. ओके. तो चलो अब हम क्या लिखेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आया तो इतना तो मालूम पड़ गया कि इट इज नॉन जीरो. ठीक है. तो लिखो सिंस रीजन इज टू बी रिटन. सिंस determinant of A is not equal to 0. Since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. ये लिखो आप. Since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो चलो राइट ऑन. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस. अभी हमें मालूम पड़ चुका है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है. नाउ यू राइट डाउन. वी नो दैट. क्या यूज करना है. लिखो ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई. व्हाई. बिकॉज वी आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई. ठीक है. तो देयरफॉर नाउ A inverse तो फाइंड करना है. A inverse is to be found out. Matrix A is given to us. So let's write down. And this is equal to identity matrix. This also I write down column wise. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Put a habit of writing down column wise. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम वाइज ही लिखना है ताकि याद रहे कि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. नाउ रिकलेक्ट व्हेन वी आर डूइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू गेट वंस एंड जीरोस रो वाइज. इधर उल्टा है. वंस एंड जीरोस रो वाइज लाना है. तो what we have to do, column number 1, check out. This is column number 1, this is column number 2 and this is column number 3. C1 C2 C3 है. now जहां पे 7 है वहां पे अपने को 1 चाहिए. तो कैन एनीवन टेल मी जहां पे 7 है वहां पे 1 कैसे आएगा. C1 plus C2. वेरी गुड. राइट डाउन. C1 plus C2. राइट डाउन. C1 changes when we do C1 plus C2. Correct. We have done this column transformation earlier also. I have taught to you. Inverse वाला नहीं but उसके पहले सिखाया गया है आपको ये. Okay. तो चलो let us do C1 plus C2. Start doing everyone. So therefore A inverse into C1 changes to C2 and C3 same रहेगा. Put a habit of writing down column wise only when you are doing column transformation ताकि याद रहे. तो गड़बड़ हो जाएगा. C1 changes C2 C3 में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. ओके. तो C1 plus C2. So this plus this 1. This plus this is -2. This plus this is -1. On the right hand side 1 plus 0 1 0 plus 1 1.
और ये 0 ही रहेगा, 0 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, वी हैव डन दैट। अच्छा, नाउ एट दिस प्लेस वी नीड 0, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो कैन एनीवन टेल मी हाउ टू गेट 0? ट्राई, नेवर माइंड, इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग चलेगा। C2 में 0 C2 plus 6C1. या एब्सोल्युटली। नाउ प्लीज डू हैव अ लुक। अभी इसमें भी 2 ऑप्शंस है, ध्यान से देखो। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज डू हैव अ लुक। अभी लिखो मत इसको। तो C2 changes when we do C2 plus 6 times of C1, -6 plus 6 0 होता है, ये हम सबको मालूम है, ये एक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कोई बता सकता है इसको 0 करने का? ध्यान से C2 देखो। minus 3C3. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। C2 changes when we do C2 minus 3 times of C3। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है ये दोनों में से हमने कौन सा फॉलो करना चाहिए? विच इज बेटर? Second. सेकेंड वन, एब्सोल्युटली। देखो, आपको खुद को मालूम पड़ रहा है सेकेंड वन बेटर है। क्यों बेटर है? -6 plus 6 0। देखो, -6 plus 6 0 आएगा, 16 minus 15 ये 1 और 9 minus 9 0 हो जाएगा। तो ये 0 1 0 तब होगा जब हम ये यूज करेंगे। इस पे वैसा नहीं होगा, इस पे खाली ये 0 हो जाएगा, बट दे विल रिमेन नॉन जीरो और दे विल नॉट अप टू द मार्क, यू नो। तो दिस इज अ बेटर चॉइस फॉर फॉलोइंग। तो लेट्स गो विद दिस। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी एकदम करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, बट दैट इज बेटर, वो ज्यादा मदद कर रहा है अपनी। तो इसको लेके चलते हैं हम। राइट डाउन बोथ ऑफ देम बट विल फॉलो दिस। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, आइदर ऑफ देम टू बी फॉलोड, आइदर दिस और दिस लिखा है मैंने, बट लेट्स फॉलो दिस C2 minus 3 times of C3, ये वाला फॉलो करेंगे हम। ओके, तो चलो लेट अस मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो A इनवर्स, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ C2 सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। C2 plus 6 C1 को बोर्ड में से हटा देता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है? तो C2 changes, ये मैं वापस इधर लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस आई रीराइट दिस। So what we are using, C2 changes when we do C2 minus 3 times of C3। ठीक है ना, तो A inverse into C2 changes, so C1 and C3 will remain same। Okay, C2 changes, so मैंने छोड़ दिया है C2 वाला part, that will do it together, or else if you want you can do that। C1 and C3 remaining same। ओके, अभी आप साइड में वर्किंग करके देख लो। C2 is -6 minus 3 times of C3 is -2। ठीक है ना, तो -6 plus 6 ये एंट्री 0 आ गया। नेक्स्ट C2 का वैल्यू है 16 minus 3 times of C3 is 5, तो 16 minus 15 तो ये 1 हो गया, और ये 9 minus 9 तो ये एंट्री 0 हो गया। तो जो बेनिफिशियल है वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऑपरेशन हम यूज करेंगे। C2 minus 3 C3 was better, so we have used that। तो ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 0 हो गया। But let's concentrate on this। But please make the changes on the right hand side also। राइट हैंड साइड में भी चेंजेस करो एंड टेल मी C2, नया वाला C2 बताओ मेरे को। 0 1 and -3। करेक्ट, वेरी गुड। इट इज 0 1 एंड -3। 0 है, ये 1 है, और ये -3 है। दिस इज अवर न्यू C2। चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ जहां पे -2 है वहां पे 0 चाहिए, जहां पे -2 है वहां पे 0 चाहिए।
तो हाउ डू वी गेट 0 ओवर हियर? क्या करना पड़ेगा? C3 plus 2C1. Correct. C3 changes when we do C3 plus 2C1. C3 plus 2C1 करेंगे. चलो let's do it quickly. So therefore A inverse into, ठीक है, C3 मतलब C1 and C2 will remain same. C3 is going to change. एकदम ध्यान से करने का. Keep patience, keep cool. You need patience for doing such kind of examples. क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो रॉन्ग हो जाता है. C3 plus twice of C1, ठीक है, तो -2 plus 2 ये एंट्री आएगा 0. 5 minus 4 ये एंट्री आएगा 1 और 3 minus 2 ये एंट्री भी आएगा 1. तो ये हो गया 0 1 1. Check to the right hand side. Tell me column number 3 on the right hand side. 2 2 1. 2 2 and 1. Yes, correct. It is 2 2 1. बराबर है. C1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो 2 2 1 आएगा. Please check. I hope everyone has reached till here.